آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی نئی شرائط کو حماس نے کیا مسترد، کہا ہم 2 جولائی کے معاہدے کے پابند۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف قرارداد منظور، تلنگانہ وقف بورڈ کا فیصلہ۔ 15 تا 20 یوم تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کا تقرر کیا جائے گا، چیف منسٹر تلنگانہ کا اعلان۔ اور تلنگانہ میں تلگو دیشم کو دوبارہ سرگرم کرنے چندرا بابو نائیڈو کی کوششیں، ریاست کے پارٹی قائدین کے ساتھ حیدرآباد میں اجلاس۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے جنگ بندی کے معاہدے کے لیے اسرائیل کی طرف سے رکھی گئی نئی شرائط کو مسترد کر دیا ہے اور وہ صرف اس معاہدے کے لیے تیار ہے جس پر اس نے 2 جولائی کو اتفاق کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق حماس کا وفد اتوار کی شام کو دوبارہ مذاکرات کے لیے ثالثوں سے ملاقات کے بعد قاہرہ سے روانہ ہوا۔ اس پیش رفت نے 10 ماہ پرانی جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی حمایت یافتہ کوششوں میں پیش رفت کے امکانات پر مزید شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن نے ایک بیان میں کہا کہ حماس نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل جو بائیڈن کی تقریر اور سلامتی کونسل کی قرارداد میں بیان کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر 2 جولائی کو طے پانے والے معاہدے کا پابند رہے۔ انہوں نے حماس کے موقف پر مزید زور دیا کہ کسی بھی معاہدے میں مستقل جنگ بندی، غزہ پٹی سے مکمل انخلا، رہائشیوں کی اپنے علاقوں میں واپسی کی آزادی، امداد اور تعمیر نو اور سنجیدہ تبادلہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ ہمدان کے مطابق ان نئی شرائط میں فلیڈیفلی راہداری میں اسرائیلی فوجیوں کی تعیناتی، مصر کے ساتھ سرحد کے ساتھ زمین کی ایک اہم پٹی اور مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کا غیر فلسطینی انتظام بھی شامل ہے۔ امریکہ کے اٹلانٹا میں تیراکی کے دوران سوریہ پیٹ کا ایک تلگو NRI اتفاقی طور پر غرق ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق 41 سالہ پراوین کمار، جو اپنی بیوی کے ساتھ گزشتہ 6 سال سے امریکہ میں مقیم تھا، ایک تعلیمی ادارے میں ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ پراوین کی بیوی نے اس واقعے کی اطلاع اس کے ارکان خاندان کو دی اور کہا کہ 8 بجے شب تیراکی کے لیے سوئمنگ پول گیا تھا، تاہم وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ سوئمنگ پول گہرا ہے۔ اس نے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی جس کے نتیجے میں وہ غرق ہو گیا۔ پراوین نے عثمان یونیورسٹی سے MSc کیمسٹری کی تعلیم مکمل کی تھی۔ BRS کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر جگدیش ریڈی نے اس کے والدین سے تعزیت کا اظہار کیا اور ممکنہ مدد کا تیقن دیا۔ تلنگانہ وقف بورڈ نے پیر کو ایک ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی بل کے خلاف ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے آج تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے اہم اجلاس میں شرکت کی۔ صدر نشین وقف بورڈ جناب سید عظمت اللہ حسینی نے وقف ترمیمی بل 2024 کے ضمن میں بورڈ کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا تھا۔ اس اجلاس میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے قرارداد منظور کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل 2024 کو مسترد کر دیا۔ جائیداد کو وقف کیے ہوئے ہیں وہ، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ وقف کی جائیداد جو ہے یہ حکومت کی جائیداد ہے اور یہ وقف بورڈ کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ جو ڈونیٹ کرے سو پراپرٹیز ہے، اور اس میں اسی کو لے کے یہ لوگ ایک جو لمیٹیشن کا جو پروویژن ہے، لمیٹیشن کا پروویژن بھی یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج اگر کوئی انلیگل انکروچرز، چاہے ریئلٹرز ہو کوئی ہو، اگر وقف کی پراپرٹی پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وقف اس کو کبھی بھی اگر اس کو واپس اس کو چھین سکتا ہے۔ وہ لمیٹیشن پروسیس کو، وہ لمیٹیشن ایکٹ کو یہ امینڈمنٹ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم پرزور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مبینہ دہلی شراب پالیسی اسکام سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میں BRS لیڈر کویتا کی ضمانت کی درخواست پر منگل کو سماعت کرے گا۔ امکان ہے کہ جسٹس BR گوائی اور جسٹس KV وشوناتھن پر مشتمل بنچ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ عدالت عظمیٰ نے 2 معاملات میں ضمانت دینے سے دہلی ہائی کورٹ کے 1 جولائی کے انکار کو چیلنج کرتے ہوئے کویتا کی جانب سے داخل کردہ درخواستوں کی عدالت عظمیٰ نے 12 اگست کو سماعت کرتے ہوئے 2 معاملات میں CBI اور ED سے جواب طلب کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے دونوں معاملات میں کویتا کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ طور پر منسوخ شدہ دہلی شراب پالیسی 2021-22 کی تیاری اور عمل آوری سے متعلق مجرمانہ سازش میں بادی النظر میں کویتا اصل سازشی ہیں۔ CBI اور ED نے پالیسی کی تیاری اور عمل آوری میں مبینہ رشوت خوری اور منی لانڈرنگ سے متعلق 2 علیحدہ مقدمات درج کیے تھے۔
कविता को ईडी ने 15 मार्च को बंजारा हिल्स में वाक़ इनकी क़यामगाह से गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में पार्टी को दोबारा सरगर्म करने के लिए अपनी कोशिशों के हिस्से के तौर पर तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन के साथ एक इजलास तलब किया। नायडू, जो पार्टी के कौमी सदर भी हैं, ने पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर NTR ट्रस्ट भवन में तेलंगाना के पार्टी कायदीन के साथ मुलाकात करते हुए तेलंगाना में पार्टी को दोबारा सरगर्म अमल और मुस्तहकम करने के अपने मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इदारेजात मुकामी के इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर भी बातचीत की। चंद्रबाबू नायडू ने बाकी कायदीन से बातचीत की कि वो रुकनियत साजी पर तवज्जो मरकूज करे। उन्होंने तयक़ुन दिया कि पार्टी के लिए सख्त मेहनत करने वालों को तरजीह दी जाएगी। नायडू ने पार्टी की तंजीम जदीद के लिए तमाम पैनल्स को तहलील करने का ऐलान किया। असम्बली इंतखाबात में पार्टी के हिस्सा न लेने के फैसले पर गुज़िश्ता साल पार्टी के रियासती सरबराह के ज्ञानेश्वर के पार्टी छोड़ने के बाद इम्कान है कि चंद्रबाबू नायडू पार्टी के रियासती सदर के नाम का ऐलान करेंगे। चूँकि पसमानदा तबक़ात की जुमला आबादी तेलंगाना की आबादी का 50% है, इम्कान है कि तेलुगुदेशम की ज़ेर क़यादत तेलंगाना में पार्टी के सरबराह के लिए एक मरतबा फिर BC लीडर्स को मुंतखब करने में दिलचस्पी रखती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि अंदरून 15 ता 20 यौम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर किया जाएगा। रियासती हुकूमत तमाम तदरीसी गैर तदरीसी अमला बशमूल असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के ओहदों को पुर करने के लिए जल्द इक़दाम करेगी। उन्होंने UPSC प्रीलिम्स कामयाब सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंदों से खिताब किया। ये सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंद राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम स्कीम्स के लिए मुंतखब हुए। UPSC में मेंस की तैयारी की हौसला अफजाई के लिए इनको 1 लाख रुपए इस स्कीम के जरिए हासिल किए। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटेरिएट में इन ख्वाहिशमंदों के साथ एक गैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने एक दहाई तक यूनिवर्सिटी और तालीम के शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने पेशो BRS हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सूरत हाल ऐसी हो गई है कि तलबा के पास खानगी शोबे से तालीम को ख़रीदने का इम्कान रह गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में उन्हें 1 लाख रुपए मालियत के चेक्स देने का मकसद आवाम और नौजवानों में भरोसा पैदा करना है कि कोई भी सेक्रेटेरिएट की इमारत में आसानी से दाखिल होते हुए खुलेआम अपने मसाइल पर बातचीत कर सकता है। तेलंगाना असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया और इससे गैर मुताल्लिक़ पोस्ट की गई। इस बात की इत्तला खुद स्पीकर ने अपने एक पोस्ट के जरिए देते हुए कहा कि आज सुबह उनका ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था। इसके बाद तकनीकी टीम ने इसका नोट लिया और फौरी तौर पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में ट्विटर अकाउंट बहाल हो गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके ट्विटर अकाउंट को हैक करते हुए जो भी वीडियोस पोस्ट किए गए हैं, इन पोस्टों और वीडियोस से इनका कोई लेना देना नहीं है। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में बरखी का पुल गिरने के नतीजे में 4 साला लड़के की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के गढ़वाल जिले के आलमपुर टाउन के संगमेश्वर कॉलोनी में पेश आया। बताया जाता है कि बरखी के तारों पर दरख्तों की शाखों के गिरने की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर इतवार को बरखी सरबराही को बंद करते हुए काम किया जा रहा था। इस दौरान दरख्त की शाख बरखी की लाइन पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में बरखी का पुल टूटकर 4 साला लड़के पर गिर पड़ा। इस हादसे में महेश नामी कमसीन शदीद जख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े पर महकमे बरखी की लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए महेश के अरकान ख़ानदान ने एहतजाज किया। रेवेन्यू और GHMC की इन्फोर्समेंट टीमों ने रायदुर्ग में सर्वे नंबर 2 ता 5 की सरकारी अराजियात पर तामीर करदा गैर मजाज ढांचों को मुनहदिम करने के लिए इन्हदामी कार्रवाई की। दूसरी तरफ इन अराजियात पर मकानात तामीर करने वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि नोटिस जारी किए बगैर रेवेन्यू और GHMC की टीमों ने ये कार्रवाई अंजाम दी। इन अफराद ने इस मुहिम को रोकने की कोशिश की, ताहम पुलिस की भारी मौजूदगी में इन्हदामी मुहिम चलाई गई। GHMC ने खुसूसी टास्क फोर्स जोनल की सतह पर तश्कील दी है ताकि शहर में गैर मजाज तामीरात की शनाख्त करते हुए इन तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान सरकारी डेटा के मुताबिक तकरीबन 500 गैर मजाज इमारतों को मुनहदम कर दिया गया। और इधर एक रूम है, जबरदस्ती पूरा सामान खाली करा है। यहाँ भी एक रूम है, ये भी एक रूम है, वो भी एक रूम है।
और आपका डीवीआर और सीसीटीवी कैमरा था? सीसीटीवी सर्वेलेंस था, पुलिस वाले लेके उनकी गाड़ी में रख लिया सीसीटीवी सर्वेलेंस का डीवीआर पूरा। ओके। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत झीलों पर गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए सख्त कार्रवाई करेगी और इन झीलों को इनकी असली हालत में बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौलियात और कुदरती आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर मौसूफ़ ने मज़ीद कहा कि आवाम को चाहिए कि झीलों और तालाबों पर गैर मजाज कब्ज़ों के ख़िलाफ़ हुकूमत से शिकायत करें। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जोग्राफियाई हालत में आलूदगी की रोकथाम के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि इस कदम में हुकूमत से ताउन करें और झीलों के अतराफ गैर मजाज कब्ज़ों की इतला फराहम की जाए। तेलंगाना हुकूमत हाइड्रा के यूनिट को मुकम्मल पुलिस स्टेशन के तौर पर अपग्रेड करने की तजवीज़ रखती है। దృష్టికి పోలీసులు కానీ రెవెన్యూ కానీ లేదా ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి పాత్రికేయుల దృష్టికి తెచ్చి వాటిని పరిరక్షించుకునేటువంటి బాధ్యత అక్కడి స్థానికులకే. ప్రభుత్వం ఎవరి మీద రాజకీయపరమైనటువంటి కక్ష సాధింపు కానీ ఉద్దేశాలు కానీ లేవు. దీనికి ప్రజల నుంచి వస్తున్న స్పందన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఈ అంశాన్ని హర్షిస్తూ ఉన్నారు. అనేక సందర్భాల్లో ఎక్కడైనా అన్యాయంగా జరిగిందంటే తప్పకుండా మీరు న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి చెరువుల ఆక్రమణలకు సంబంధించిన అంశం పట్ల ఈ ప్రభుత్వం సీరియస్గా ఉందని, ఇది ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ మంచి చెరువుల నగరంగా ఉన్నటువంటి చెరువుల యొక్క లేక్ సిటీగా ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ నగరాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి చెరువుల పరిరక్షకులందరూ కూడా ఇంకెక్కడెక్కడైతే ఆక్రమణలు గురైనాయో వాటి ఆధారాలు, వాటి ఆనవాళ్ళు, వాటి చరిత్రకు సంబంధించిన అంతా కూడా తీసుకొచ్చి సంబంధిత అధికారులకు ఇవ్వాలని కోరుతాను. ఇదే విధంగా 33 జిల్లాల్లో కూడా ఎక్కడైనా అది గ్రామం కావచ్చు, పట్టణం కావచ్చు, మండలం కావచ్చు, మున్సిపాలిటీ కావచ్చు, చెరువులకు సంబంధించి లేదా ప్రభుత్వ స్థలాల్లో అక్రమాలు కావచ్చు, ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకుండా పెద్ద పెద్ద అక్రమ కట్టడాలు కావచ్చు, వాటన్నిటి పట్ల మీకున్న సమాచారాన్ని, అవగాహనను, ఆలోచనను ప్రభుత్వం దృష్టికి తెమ్మని చెప్పి కోరుతాను. ప్రజలకు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములు కావాలని సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर तारक रामाराव ने रियासत में डेंगू बुखार से होने वाली अमवात पर तशवीश का इजहार करते हुए तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से ख्वाहिश की। ट्विटर पर डेंगू से हो रही अमवात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अखबारात के तराशों को पोस्ट करते हुए तारक रामाराव ने लिखा, रियासत में डेंगू काफ़ी फैल रहा है और इससे कई अमवात भी हुए हैं, लेकिन हुकूमत का दावा है कि डेंगू से अमवात नहीं हुए। लेकिन अखबारात का कहना है कि एक ही दिन में डेंगू से 5 अमवात हुई हैं और एक दिन डेंगू से 3 अमवात होने की भी अखबारात ने इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि अमवात से मुताल्लिक़ इत्तलात अखबारात में शाये हो रही हैं, लेकिन हुकूमत डाटा को राज में रख रही है। केटीआर ने सवाल किया कि अमवात को राज में रखने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी दवाखानों में ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात दस्तयाब नहीं हैं। कई दवाखानों में बिस्तरों की किल्लत देखी जा रही है। एक बिस्तर पर 3 से 4 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सीआईडी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जिसमें बताया जाता है कि खानगी दवाखानों में करोड़ों रुपए के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। बाज़ अफराद और कई खानगी दवाखानों की जानिब से फर्जी बिल्स दाखिल करते हुए हुकूमत से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत रकम का दावा करने की कोशिश की गई। रियासती हुकूमत के महकमा माल के CMRF विंग के अहदेदारों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। FIR में मीरपेट, हस्तिनापुर, BN रेड्डी नगर, रंगारेड्डी, कुत्तापेट और बैरामलगुड़ा के 6 खानगी दवाखानों का नाम शामिल किया गया है। मुलजिमीन ने फर्जी बिल्स बनाते हुए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को पेश किए थे ताकि CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाई जा सके। दवाखानों और बाज़ अफराद ने जालसाजी की कोशिश करते हुए रियासती हुकूमत को धोखा देने का काम किया था। CID की टीम ने तहकीकात के हिस्से के तौर पर रियासत के चंद दवाखानों बशमूल करीमनगर, रंगारेड्डी, वरंगल और मेदक के दवाखानों का भी मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के पास DSC 2008 के मुतासरीन की भारी तादाद जमा हो गई और उन्होंने प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स के जरिए इंसाफ करने का मुतालबा किया।
एहतजाजी ज़िम्मेदारों ने बैनर्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की इन बातों मशवरों को तहरीर करते हुए अनोखे अंदाज में एहतजाज किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि एहतजाज मत करो, मसाइल पर इनसे आकर मिलो। एहतजाजी उम्मीदवारों ने चीफ मिनिस्टर से अपील की कि जारी साल फरवरी में रियासती काबीना में लिए गए फैसले के मुताबिक उन्हें तकरीरनामे हवाले किए जाएं। इसके अलावा मंगल को अदालत की क़तई तहक़ीक़ात मुक़र्रर है। इसी के पेश नज़र सब कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल करते हुए तकर्रुरात हवाले करने का ऐलान किया जाए। इन उम्मीदवारों ने कहा कि वो धरना नहीं दे रहे हैं बल्कि चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त कर रहे हैं। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने IIT हैदराबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने तुलबा की जानिब से तैयार करदा ड्राइवरलेस कार में सफ़र किया। बताया गया है कि मुल्क में पहली मरतबा IIT हैदराबाद के तुलबा ने इस कार को तैयार किया है। कार में सफ़र करने के बाद रियासती वजीर ने तुलबा की सलाहियतों की सताइश की और कहा कि हैदराबाद IIT मुल्क भर के लिए एक मिसाली कॉलेज बन गया है। उन्होंने कार तैयार करने वाले तुलबा से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए तयक़ुन दिया कि तजुर्बे के मराहिल में होने वाली इस कार को मार्केट तक लाने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। इसके लिए हुकूमत हर तरह की मदद भी करेगी। उन्होंने तुलबा को मशवरा दिया कि तमाम शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मुतारुफ करने की कोशिश करें। जंगबंदी के लिए इजराइल की नई शरात को हमास ने किया मुस्तरद, कहा हम 2 जुलाई के माहदे के पाबंद। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर, तेलंगाना वक्फ बोर्ड का फैसला। 15 ta 20 यौम तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का ऐलान। और तेलंगाना में तेलुगु देशम को दोबारा सरगर्म करने चंद्रबाबू नायडू की कोशिशें, रियासत के पार्टी कायदीन के साथ हैदराबाद में इजलास। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।